Hi guys, this is Abhyata here and you're listening to The Rants. I hope you all are doing well. मैं कैसी हूँ वो मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद लेकिन this is not just an ordinary episode of the Brown Girl Rants. Actually, none of the episode is an ordinary episode. Every episode is special for me. लेकिन this today marks the 10th episode of the Brown Girl Rants. So woohoo! And it's an achievement for me and it's a milestone for me or I can't believe it's the 10th episode क्योंकि it seems a lot. I don't know, मुझे लगता है I just started. कभी कभी मुझे लगता है I just started, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि I'm doing this shit since forever. तो लेकिन 10th episode is a big deal for me and it's I hope it is for you guys too. I hope मतलब I know it is for you guys too क्योंकि you guys make this show or whatever what it is. और अगर मुझे कोई ना सुने तो मैं शायद ना 10th episode तक जा पाती लेकिन your feedback or you listening to it made me want to be consistent in it and put effort in it and enjoy it. So thank you so much for sticking with me. Or I hope I promise that there is a lot more content for you in the future. I hope I don't know मुझे नहीं पता कि will it मतलब कि I अगर मैं सोचूं तो I would never like stop doing this podcast until I die. लेकिन I don't know कि there would be a time when I'll be like okay this is the last episode bye. लेकिन there might be a time क्योंकि कभी ना कभी तो खत्म होने obviously I can't I don't know like I don't know I do think about it a lot कि what's gonna happen. लेकिन अभी it's the start and there's so much more to tell and there's so many episodes that I मतलब so many topics that I have to discuss. There would be so many phases of life that I'll go through and I would love to share. And there's so many people that I want to interview. Okay, so अच्छा अब हम इस टॉपिक पे आ ही गए हैं तो 10th एपिसोड है and there were some certain goals that I set for the 10th episode कि ये तब तक हो जाने चाहिए या उसके बाद हो जाने चाहिए. और नंबर वन गोल ये था कि मुझे अपनी 10th एपिसोड के बाद एटलीस्ट माइक लेना है. इनिशियली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वुडेंट डू अ पॉडकास्ट क्योंकि मुझे लगा था कि ओ मेरे पास माइक नहीं है और मुझे माइक लेना है. और उसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं इस माइक लेने पे बैठ गई ना तो आई नेवर ever get a mic and I'll never ever start a podcast. So earphone mic works fine. So Rabia, go with that. And it works wonder. It works fine for a 500 rupees earphone, not even 500 rupees. तो मुझे लगता है कि ये सही है लेकिन आई रियली 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 वांटेड टू अपग्रेड द माइक क्योंकि आई वांट द वॉइस क्वालिटी to elevate a little bit and I want you all to have a good listening experience. I really, really, really wanted to have a mic. मैंने थोड़ी सी रिसर्च की जो अच्छे वाले माइक थे द वन आई वाज ड्रीमिंग वो बहुत महंगे थे. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू बी दैट कॉस्टली. वो बहुत महंगे थे लेकिन देयर आर सम चीपर ऑप्शंस. आई वांट टू बाय देम लेकिन मेरा मार्केट चक्कर ही नहीं लगता कि मैं लूँ. और देयर इज एब्सोल्युटली नो वन टू गाइड मी. देयर आर पीपल टू गाइड मी लेकिन they haven't got it themselves. They know. Or the mics I want मतलब कि I don't know I'm not being able to make a decision और मैं online कुछ order करा नहीं सकती. तो I want someone to physically go with me and advise me कि ये ले लो. So this is one thing that I really wanted and I haven't done yet. Secondly, as I mentioned earlier, I really wanted to have guest. I really wanted to have guests in the podcast. I really really want to have guests. क्योंकि मैं कितनी अपनी बात सुना लूँगी. I think I would love to have a different opinion, a different experience of someone. I would love someone else to talk about themselves or बहुत सी लोगों की ज़िंदगी मुझसे बहुत डिफरेंट है हर किसी की. तो मुझे अच्छा मतलब कि आई रियली वांट मोर पीपल कि मैं शायद मेरे से हर कोई रिलेट ना करता हो तो कोई और बंदा है उससे आप ज़्यादा रिलेट करते हो. तो वो मैंने सोचा था कि आई विल स्टार्ट हैविंग गेस्ट आफ्टर 10th एपिसोड क्योंकि मुझे 10th एपिसोड तक अपने आप को ज़रा इस्टेब्लिश करना था कि yes I would interview
people, but this is my podcast mainly. तो I want कि पहले मैं खुद establish हो जाऊं, और establish नहीं मतलब कि पहले मैं खुद जरा या establish हो मतलब कि you get it right. तो पहले मैं खुद कर लूं, उसके बाद 10th एपिसोड के बाद जब मेरा एक पूरा मतलब कि आई विल बी स्ट्रांग और मेरी अपनी पर्सनालिटी सबको पता लग जाएगी, तब उसके बाद मैं लोगों को करना शुरू करूंगी. लेकिन टू हैव पीपल ऑन द पॉडकास्ट आई रियली नीड माइक, आई नीड 2 माइक्स एट लीस्ट. और उसके बाद मैं किसी को बुला के उनका इंटरव्यू कर सकती हूँ, या अभी तो मुझे लगता है मैं इंटरव्यू नहीं कर सकती, लेकिन आई कैन हैव माई फ्रेंड्स ओवर एंड मतलब के आई वुड लव टू हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सर्टेन टॉपिक्स. लेकिन वो दोनों चीज़ें नहीं हो सकी, और बेसिकली आई नीड अ माइक. तो लेट्स सी, होपफुली वील गेट अ माइक. आई डोंट नो अगर अगली एपिसोड तक आ जाएगा कि नहीं, लेकिन आई विल मेक श्योर कि आई गेट अ माइक. a lot of people do think कि I am maybe earning from this podcast. I'm really not. और अभी तो मुझे लगता है बहुत शुरू है, और I tried to research a bit क्योंकि the show did got on the trending list. मतलब कि did got on the trending list some. क्या हो गया मुझे, मुझसे बोला कि नहीं जा रहा. द शो डिड गॉट ऑन ट्रेंडिंग लिस्ट अ फ्यू टाइम्स, और इट्स डूइंग वेल. इट्स नॉट गेटिंग दैट मच क्रेजी लिस्टनर, मतलब कि इट्स मतलब कि लेकिन इट्स गोइंग फाइन. और फॉर अ पॉडकास्ट इट्स गो मतलब कि इट्स रियली अमेजिंग टू मतलब कि इट्स रियली अमेजिंग एंड शॉकिंग फॉर मी कि देयर इज a lot more than anticipated. The people I A lot more people than I anticipated. Why I can't speak today? I'll tell you why I can't speak today. I know. तो लेकिन बहुत ज़्यादा मैं एंटिसिपेट नहीं कर रही थी. मुझे लग रहा था कि बस 4-5 लोग सुनेंगे, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा लोग सुनते हैं. लेकिन स्टिल एक तो मतलब आई एम नॉट अर्निंग, और जहाँ मैं जिस मुल्क में रहती हूँ वहाँ पे मोनेटाइजेशन पॉडकास्ट की अपेरेंटली होती भी नहीं है. आई डोंट नो, वील फिगर दिस आउट. और एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वो मेरी पूरी भी नहीं हुई अभी लिसनर्स वगैरह की. और आई this is not something I started as a investment, as something I could earn off. So getting a mic is not like I'm investing in a mic. It's more like I want a good listening experience for you all, and I think it would be more enjoyable for me too to record in a mic. So I completely take this whole podcast as an activity. और it's not like कि अगर मुझे इससे पैसे ना मिले तो I'll stop doing it, क्योंकि I don't see it as something that I want to have a living on, if that makes any sense. मतलब कि I would love to, obviously I would love to, why wouldn't I would be. लेकिन it's एक तो I'm not earning, तो जिसको भी लगता है I'm earning from it, I'm really not. Secondly, I would love to have it monetized. मतलब that would be so sick. लेकिन this is not something that I started off because I wanted to make money out of it. I wanted to start it because I wanted as a hobby, as something I would find pleasure in. तो इस वजह से I don't let the monetization thing get on my mind कि अगर नहीं भी हुई तो it's okay, it's fine. और it's so initial अभी, तो अभी तो I'm not even anticipating anything. लेकिन I don't know मतलब कि growth wise I don't know the part मतलब कि for the podcast growth wise I don't know how it's gonna be. कब ये भी हो सकता है कि आहिस्ता 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 listeners कम हो जाएं, और ये भी हो सकता है ज़्यादा हो जाए. तो let's see what happens. So let me tell you why मेरे मतलब कैसे मेरे साथ क्या हुआ है. तो आई एम हैविंग अ वेरी रफ डे. आई टेक्निकली पार्टीड फॉर द पास्ट 4 डेज, फ्राइडे से लेकर मंडे तक मैंने फुल घुमा पूरे फिर है. फ्राइडे को जो है मैंने आई वॉज आउट विद माई फ्रेंड्स, ठीक है. उसके बाद फिर सैटरडे को आई वेंट टू माई फूफोज होम, और फिर वही कजिन्स के साथ हैंग आउट विद देम. फिर आई स्टेड एट माई फूफोज होम, और नेक्स्ट डे आई वेंट टू लाहौर म्यूजियम एंड आई हैड अ ब्रेकफास्ट इन गुलबर्ग, और उसके बाद वी वेंट टू लाहौर म्यूजियम. तो दैट वाज रियली फन. लेकिन और मतलब कि आई वोक अप एट 7 a.m. दैट डे. और आई डोंट नो आफ्टर how many months I woke up at that time. मुझे नहीं याद when I last woke up at 7 a.m. And I feel so embarrassed saying that क्योंकि that was my shit. That was my thing. मैं 7 बजे उठ जाती थी, 6:30 उठ जाती थी.
तो it's very sad that I don't wake up that early anymore. लेकिन हम उस दिन मैं हुई और it was so much fun. तो तीसरा दिन भी हो गया, फिर उसके बाद we came back and I still had a lot of fun. We watched a movie, ये वो। उसके बाद उससे अगले दिन I went to my university, क्योंकि I was at my फूफूस home और मेरी यूनिवर्सिटी उनके घर से बहुत करीब थी। तो I just went to my university to visit it and to meet teachers, to meet people over there, to meet my friends, और it was very nice. उसके बाद मैं घर आई हूँ तो I was having migraine, क्योंकि मैं जब रात को ट्रैवल करती हूँ तो मुझे माइग्रेन हो जाता है, स्पेशली सर्दियों में। और अभी मुझे पता है गर्मी आ रही है, लेकिन इट्स स्टिल अ लिटिल बिट कोल्ड एट नाइट्स। तो मुझे, और फिर मैं सो गई, और फिर मैं सुबह उठी हूँ, लेकिन मैं इतना थकी हुई हूँ ना, मतलब कि जैसे हैंगओवर नहीं होता लोगों को, हालांकि आई वाज नॉट हाई, लेकिन आई थिंक आई एम हैविंग द हैंगओवर, जो 4 दिन मैंने पार्टी की है ना उसका। और मुझे इतनी नींद आ रही है, आई कांट डू एनीथिंग, आई वांट टू स्लीप, और इट्स अ वेरी रफ डे फॉर मी, और मुझसे कुछ नहीं हो रहा। आई स्टिल हैव बीन एबल टू मैनेज टू डू वर्क, काम घर का भी सब कुछ, लेकिन और अब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ और कल क्योंकि मुझे अपलोड करनी है, और आई डिडंट वांटेड टू रिकॉर्ड द पॉडकास्ट, टू बी ऑनेस्ट मेरा नहीं दिल चाह रहा था, मैं कह रही थी झूठ ही रिकॉर्ड करना, क्योंकि आई वाज रियली हैविंग अ रफ टाइम। लेकिन इट वाज द 10th एपिसोड और आई वांटेड, और असल में ना देयर आर अ लॉट ऑफ आइडियाज, देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट आई वांट टू डू, और मुझे लोगों ने भी इतने टॉपिक्स रिकमेंड किए हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पूरा वीकेंड पार्टी की तो आई डिडंट वर्क ऑन एनी एपिसोड, क्योंकि आई यूजुअली मेक नोट्स, क्योंकि मुझे जब क्योंकि मोस्टली मेरे टॉपिक्स आर अबाउट कॉन्फिडेंस और फ्रेंडशिप ये वो, और उसके लिए मुझे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही बैठ के कोई रैंडमली बात नहीं कर सकती, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, प्रिपेयर माई सेल्फ अबाउट इट, और फिर मैं नोट्स बनाती हूँ, फिर मैं एक एक बात करती हूँ। लेकिन इस एपिसोड के लिए मेरी कोई वर्किंग नहीं थी, और तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा इट्स ओके, वील जस्ट हैव अ चिल एपिसोड, वील चिट चैट, आई टेल, मैं रैंडमली जो मेरे जहन में आए वो मैं बोल दूंगी। फिर आई पोस्टेड a स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम के इफ़ यू गाइज वांट टू शेयर एनीथिंग और आस्क मी एनीथिंग तो मुझे बताओ। अ फ्यू पीपल डिड रिप्लाई टू इट, नॉट अ लॉट ऑफ। मैंने बहुत डरते डरते लगाई, क्योंकि आई न्यू कि मैं, अगर मैं कोई टॉपिक स्पेसिफिक लिखूँ ना कि हाँ मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर आप लोगों के पास कुछ है शेयर करने के लिए तो आप बता दें, तो मुझे लगता है लॉट ऑफ पीपल वुड रिस्पॉन्ड टू इट। लेकिन मैं ऐसे ही इतनी जनरल बात कर दूं कि कुछ भी बोल दो, तो आई डोंट थिंक कि समवन मतलब कि कुड कम अप विद समथिंग, और अगर मैं खुद भी होती तो मैं भी ना होती, तो इट्स फाइन आई थिंक। लेकिन जिसने रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच। तो ये था, और मैंने कहा कि मैं चलो खुद भी थोड़ा चिल एपिसोड हो जाए, और मतलब कि जस्ट चिट चैट हियर एंड देयर, मतलब कि इट डजंट नीड टू बी अबाउट एनी टॉपिक और एनी सीरियस टॉपिक। लेकिन that's the thing, तो this episode is like another filler episode which is sad, लेकिन I hope you all enjoy। लेकिन if this episode is a bit मतलब कि for entertainment not even entertainment, it's like हाँ it is for entertainment purposes, लेकिन I'm not telling anything thought provoking or anything that could change the way you think, the way I try to do in the past few episodes। और पहले मेरा एपिसोड का फॉर्मेट डिफरेंट था, इफ़ यू गाइज नोटिस्ड, मैंने जो सेकंड एपिसोड अपलोड की थी या थर्ड एपिसोड की थी, उसमें मैंने ये करती थी कि मैं 2-3 टॉपिक्स इकट्ठे करती थी और उन सब के बारे में बात करती थी। लेकिन आई थिंक आई मच मोर कंफर्टेबल इन द फॉर्मेट दैट इज नाउ, कि मैं एक टॉपिक पकड़ूँ और उसके बारे में डिस्कशन करूँ। आई थिंक दैट इज मच मोर, दैट इज बेटर फॉर मी एंड फॉर यू गाइज टू। और फिर मुझे और क्या बात करनी थी, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग और मैं भूल गई, और मेरा यही मसला है पूरी ज़िंदगी का कि, और यही होता है जब आपने अपने पॉडकास्ट में नोट्स ना बनाए हो और आप रैंडमली बात कर रहे हो और आपको कुछ पता ना हो आपने क्या कहना है क्या नहीं। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द पॉडकास्ट। अच्छा तो the podcast में, अच्छा what I have seen in other podcast is that के उनके सीजन्स होते हैं, कि आप मत क्या एट द एंड ऑफ द ईयर या जब भी आप एक महीने की ब्रेक लेते हो एंड यू कम अप विद अ न्यू सीजन।
I don't know if I want to do that. I obviously would love to take a break. Not I won't love to take a break, लेकिन I would love to जब season 2 आता है तो फिर they change the cover of it, or do a little bit rebranding. So I would love to rebrand this podcast क्योंकि I would love to have a new cover of it. I would love to rebrand the Instagram page a bit, मतलब कि basically the cover. लेकिन I don't know if I want to have seasons or not, but I have the podcast I listen to do have seasons के, लेकिन मैं सोचती हूँ और हर साल नया अगर सीजन आ रहा है तो मैं कब तक सीजन गिनती रहूंगी, सीजन 25th, मतलब कि होपफुली सीजन 26, 27। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि इज इट अ गुड आइडिया, या मैं सीजन गिन गिन के थक जाऊंगी। लेकिन जब मैं अपलोड भी करती हूँ ना तो दे डू आस्क मी, ओ व्हाट सीजन इज इट। तो आई थिंक आई वुड लव, मतलब कि आई वुड हैव अ सीजन 2 इन 2024। yeah, I think most probably I will. So that's one thing. The second thing is that I would love to have guests. I initially would want to have guests of different fields. I personally would love to interview my school friends firstly, or they're the ones that मतलब कि we all talk so much आजकल, और हम हर डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो आई वुड लव टू हैव देम, क्योंकि एक तो आई डू हैव, मतलब आई ग्रू अप विद देम basically, and now we haven't been studying together, yeah, we haven't been meeting each other that much, like we are not that directly involved in each other's life, लेकिन or we are, मतलब we spent 10 years together, but now for the past 6 years we are in our own path, or I would love to know their experience about their field and blah blah blah. So I would love to interview them. I would love to interview माय ऑनलाइन फ्रेंड्स, लेकिन उसमें ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू रिकॉर्ड इट, और आई डोंट नो व्हाट, मतलब कि कैसे होगा वो सब कुछ होगा। लेकिन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड बी really interesting to talk to. I would love to interview obviously a more known people, मतलब not celebrities, लेकिन there are a few people that really inspires me. For example, I would love to interview Usman Khalid, but obviously he's a celebrity. लेकिन if there is one celebrity I would love to interview, that would be Usman Khalid. But क्योंकि आई एक्टर के अलावा वो आई, मतलब कि he's a great human being and I love to see him, मतलब कि I love to see him more off screen than on screen. मुझे मतलब कि I love his interviews, so I would love, or I actually talked to him once on a space. तो I once had a Zoom call with him too. ये नहीं था, हम दोनों की personal call नहीं थी, basically it was a Halloween themed Zoom call, और उस पे और भी थोड़े से लोग थे, but he was there and he was sharing his horror stories, which was very fun. उसके बाद I once had a once talked to him on Twitter Space. He replied to my tweets, or he liked my tweets. So he doesn't know my existence, but I would like to believe he does. लेकिन he don't know that I have a podcast. लेकिन I think he's someone कि अगर मैं अपना थोड़ा सा पॉडकास्ट अपग्रेड कर लूँ, इफ आई वुड ऑफर हिम, तो ही वुड, आई थिंक ही वुड लव टू कम एंड टॉक टू मी on the podcast, but he don't know that I exist, he don't know my name, लेकिन I have talked to him. So I would love to interview Usman Khalid, but I would love to interview this no, he's not an influencer, but he's a guy, this guy named Ansar. I don't know if you all know about him or not, but he मतलब के आफ्टर, मतलब उस्मान खालिद बट के बाद आई लव दैट मैन सो मच, और ही मेक्स स्किट्स, ही मेक्स वीडियोस एक्सप्लेनिंग इश्यूज और वुमेन राइट्स के बारे में वो बहुत बात करते हैं। ही इज़ अ वेरी फनी गाय। आई वुड लव टू इंटरव्यू हिम। ही मतलब के ही इज़ ऑन द बकेट लिस्ट। देन आई वुड लव टू इंटरव्यू हदीका कियानी, क्योंकि लेकिन आई डोंट हैव एनी पर्सनल कांटेक्ट दीका क्या नहीं। आई मतलब कि मैं अपनी बकेट लिस्ट बता रही हूँ, लेकिन इट्स नॉट लाइक आई डोंट हैव एनी गेम्स, तो ये सब हवा में तीर है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। आई वुड लव टू इंटरव्यू हदीका कैनी, क्योंकि शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क नाउ डेज एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी टू
मतलब के our celebrities, to see our celebrities are doing work, or they're मतलब के they do, our celebrity have a lot of influence on people, and I don't think they use that. वो अपने बस acting की हद तक रखते हैं. तो it's so good whenever I see celebrity using the power they have and helping out people. So I would love to interview Hadika Khan. I would love to interview Shazad Roy. I am really fond of that guy and I love the work he does. मतलब कि in his मतलब कि even the message he spreads in his music, not spread, पता नहीं क्या है, जो भी वो अपने म्यूजिक के में काम करता है, I really love his work. So I really want to interview the famous people who have done something off screen too. मतलब I would love to interview, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है उनके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स के इंटरव्यू लेने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन आई वुड लव टू इंटरव्यू द सेलिब्रिटीज who have more to talk other than their on-screen characters and the movies and the Pakistani industry, which is something I would also talk to. I'm also interested in the industry, so I would love to talk about that too. लेकिन these are the few people that I would want to interview, और मैं बैठे बैठे सोचती भी हूँ कि I would love to interview them. देन अच्छा, एक तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आज मेरे मतलब कि इट्स लाइक हैविंग नो स्क्रिप्ट टुडे टू टॉक, और मैं ऐसे ही बात किए जा रही हूँ. लेकिन अच्छा, देन देयर अच्छा, this is something I really wanted to address. When I started this podcast, मैंने बात कोई और करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा. I don't think कि मैंने अपने ना मतलब I have a personal Instagram account obviously, लेकिन I didn't really मतलब कि posted a story on that account, on the personal account, announcing that I have a podcast. अगर किसी ने मुझे टैग किया होता तो मैंने रीशेयर कर दिया, लेकिन I never posted a story or asked someone to follow my account or to listen to my podcast, especially on my personal account, क्योंकि personal account में ज़्यादा वो लोग हैं who know me in real life. तो which is मतलब कि uh, I don't know, मतलब कि it's good, मतलब कि I'm not someone who would DM someone asking कि please follow my account या please give me a shout out, or I personally don't like that when someone DMs me saying कि यार मतलब give us a shout out, क्योंकि I think कि if I really love your content or your whatever you're doing, I would give it a shout out. मतलब कि you can't force someone to follow your account if you they don't like your content. So I never expected someone to follow me, and I never asked someone to follow me. And मुझे लगता है follow की हद तक ठीक है, लेकिन I don't expect someone who knows me in real life to listen to my podcast, really, honestly. और इस वजह से I never really asked anyone. लेकिन जब मुझे मतलब कि a lot of people would come up to me, especially जब मैं किसी get together में जाती हूँ, and they would be like, we are sorry, हमने आपका अभी तक episode नहीं सुना, या हमने अभी तक सुना नहीं, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन. तो मैं उनको कहती हूँ, माई गॉड, इट्स ओके. मतलब कि आई पर्सनली डोंट डिफाइन फ्रेंडशिप्स के अगर मुझे सपोर्ट मेरी पॉडकास्ट सुन रहे हो तो ही तुम मेरे अच्छे दोस्त हो. क्योंकि एज आई डोंट नो इफ आई टोल्ड यू ऑल बिफोर दैट और नॉट, लेकिन मेरी फैमिली मतलब कि मेरे फैमिली में से भी कोई नहीं सुनता, मेरे मतलब के सिबलिंग्स और मेरे पेरेंट्स में से. क्योंकि वो जब मैंने मेरी मम्मा ने सुनने सुनने की कोशिश की और सुना भी, लेकिन इट वॉज नॉट समथिंग न्यू फॉर हर, क्योंकि शी डज लिसन्स टू मी एवरी सिंगल डे, और मेरी बहन ने भी सुनी और शी वाज लाइक इट्स लाइक आई एम लिसनिंग टू यू, बताइए, इट्स नॉट लाइक आई एम. तो इट्स तो आई डोंट, तो मतलब कि आई डू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम इन रियल लाइफ, तो उनको वो पॉडकास्ट नहीं मतलब के सुन के उनके लिए वो कुछ नया नहीं होता या कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं होता, क्योंकि वो मुझे रोज सुनते रहते हैं. तो इस वजह से मुझे जब कोई इन रियल लाइफ या कोई मेरा फ्रेंड कोई कहे ना कि वो हमने सॉरी सुना दी, तो आई मतलब कि मैं कहती हूँ, ओह माय गॉड, इट्स ओके, आई डोंट माइंड दैट. क्योंकि आई रियली मतलब कि अगर कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी पॉडकास्ट सुन भी रहा है, तो वो एक एपिसोड सुन लेगा, दो एपिसोड सुन लेगा. अगर मेरी बातें उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही तो नहीं कर रही, और इट्स कम्प्लीटली फाइन. मैं इस मतलब कि अपनी दोस्ती किसी से नहीं तोड़ूंगी कि ओ तुमने मुझे मेरे पब्लिक अकाउंट में फॉलो नहीं किया हुआ, या तुमने मेरी स्टोरी नहीं डाली थी, या मेरी पोस्ट नहीं लाइक की थी. मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे मतलब कि जिनको इन्फ्लुएंस कर रही है बातें, आई रियली वांट ओनली दोज पीपल टू लिसन टू द पॉडकास्ट जिनको ये चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस कर रही हैं. ये कभी कभी मुझे पता है कि ऑडियंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, कोई डिफरेंट रिलीजन की है, कोई डिफरेंट स्टेट की है.
तो हर टॉपिक हर किसी को नहीं करेगा, किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फाइन कि आप उस टॉपिक को स्किप कर दो, कि अगर वो आपका इंटरेस्ट का नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर इन रियल लाइफ इफ समवन इज माय फ्रेंड, तो आई डोंट थिंक आई विल डिफाइन द फ्रेंडशिप ऑन द बेसिस कि मुझे सपोर्ट किया कि नहीं किया। I think it's completely fine if they're not listening to it, क्योंकि I know कि it could cannot influence them, or it's okay, or मतलब कि they don't need to listen to it, क्योंकि I really want people who are मतलब कि getting influenced by it, or who are really enjoying this, मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा, मतलब कि वो सुने, ठीक है। तो इस वजह से आई डोंट रियली माइंड व्हेन पीपल टेल मी दैट दे हैवंट लिसन टू द पॉडकास्ट। मैं कहती हूँ, और मैं सही बताऊँ तो आई गेट अ लिटिल बिट एम्बैरेस्ड हूँ जब मुझे कोई कहते हैं ना कि हाँ हमने सुनी। मैं थोड़ा सा ना हो जाती हूँ शर्मिंदा, मैं कहती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे लग क्योंकि आई डोंट नो, आई थिंक दैट मतलब कि ऑब्वियसली मैं यहाँ बहुत खुल के बात कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट रियली हैव, मतलब कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ नहीं है, तो और मैं जो मेरे मुंह में आ रहा है वो मैं बोलती जा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि दिस इज द, मतलब कि आई मतलब कि आई टोल्ड यू ऑल कि आई एम रियली एक्टिव ऑन ट्विटर, और ट्विटर में मेरी पर्सनैलिटी इज वेरी डिफरेंट देन माई पर्सनल अकाउंट की पर्सनैलिटी, और जो मेरी ट्विटर में पर्सनैलिटी है वो मेरी यहाँ इस पॉडकास्ट पे होती है या फिर मेरे पब्लिक अकाउंट पे होती है। तो कभी कभी आई गेट अ लिटिल एम्बैरेस्ड कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओपन अप हो गई हूँ, विच इज़ वाई आई एम मोर कंफर्टेबल विद पीपल हु डोंट नो मी, क्योंकि आई नो कि दे डोंट नो शिट अबाउट मी, आई डोंट केयर। लेकिन द पीपल हु नो मी वो जब बताते हैं ना कि आई लिसन टू इट, आई एम लाइक, तो आई started considering whatever I rethinking about whatever I said and whatever I do, क्योंकि आई डोंट वांट देम टू थिंक आई एम क्रेजी, ठीक है, एंड और नो टू मच अबाउट मी, क्योंकि इट्स काइंड स्केरी। लेकिन जब मुझे कभी कभी मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड कहते हैं और मुझे फिर खुशी होती है इवेंचुअली, और मुझे कभी भी नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला कि हाँ तुम्हारी पॉडकास्ट नहीं अच्छी, या कोई किसी ने ऐसा नहीं कहा जिससे मैं मतलब कि डरती थी। मतलब कि एवरीवन हैव बीन वेरी अप्रिशिएटिव, और जो सुनते भी हैं, और मतलब कि मुझे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, जो कि मेरे कजिन्स हैं या फिर कुछ मतलब के फैमिली के लोग हैं, कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि दे वुड लिसन टू इट, दे आर लिसनिंग टू इट। और मुझे बहुत मतलब कि मैं शुरू में आई एम अ बिट लाइक व्हाट, क्यों सुन रहे हैं, या आई गेट अ लिटिल बिट एम्बैरेस्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत मतलब कि एज आई सेड कि आई एम अ बिट मोर कंफर्टेबल विद पीपल हु डोंट नो मी, और मुझे लगता है कि है। लेकिन फिर मतलब कि आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि एवरीवन ओनली अप्रिशिएट्स मी, और किसी ने कभी कुछ बुरा नहीं कहा। और व्हाट इज मोर अनएक्सपेक्टेड इज दैट कि मेरे माय पेरेंट्स गेट सो हैप्पी जब भी कोई उनके सामने, वेन एवर समवन ब्रिंग्स इट अप in front of them के oh Rabia does a podcast we really love it या ये वो, तो they get really happy listening to it, मतलब कि think मतलब कि से जब कोई कहता है कि we enjoy listening to Rabia's podcast, वो जो वेरी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, मुझे लगा था वो कहेंगे कि क्या कर रही हो। लेकिन इट रियली मेक्स देम हैप्पी जब भी कोई अप्रिशिएट करे कि हाँ हमने रवि की पॉडकास्ट सुनी एंड इट्स रियली गुड। और पर्सनली जब मैं स्टेज पे भी थी और जब मैंने वो सब कुछ भी किया था, तो भी so there was a little bit interruption but we are back। तो दस तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जब मतलब कि मैंने स्टेज पे भी मैंने जब होस्टिंग भी स्टार्ट की थी, तो भी दे वर रियली रियली सपोर्टिव फॉर इट, और विच इज समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट। द थिंग इज दैट कि मुझे लग रहा है कि आज की एपिसोड मज़े की नहीं है, क्योंकि आई हैवंट रियली प्लान्ड इट, और मुझसे जो है वो किसी बारे में सही से बात नहीं हो रही। पर आई होप दैट इज स्टिल enjoyable फॉर यू, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू ओपन अप द इंस्टाग्राम अकाउंट ताकि मैं लोगों के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दूं, और बोंगिया मत मारूं। लेकिन आई विश आई वुड हैव प्लान्ड इट, लेकिन इट्स ट्यूसडे एंड इट्स 11:47 एंड आई हैव नो अदर ऑप्शन देन टू अपलोड दिस पॉडकास्ट। तो इफ दैट्स बोरिंग फॉर यू तो प्लीज डोंट लिसन टू इट। Acha, first of all, I have this question to how to cope up with daily work stressors, please. Or it's from Aisha Khalid. Aisha, I love you. Or Aisha is
someone who was in my university, and we passed out together, but we never got to meet each other, and we interacted after passing out, or which is very sad. लेकिन Aisha, I love you. Thank you so much for the support, और I really 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 adore you. लेकिन और अच्छा, आयशा का क्वेश्चन है, हाउ टू कोप अप विद डेली वर्क स्ट्रेस. अच्छा, तो आई पर्सनली फील के मुझे अच्छा, आई थिंक कि a little bit stress is important. I personally believe that the hustle never ends, or it shouldn't end. मैं पर्सनली जब मेरे पास बिल्कुल कोई स्ट्रेस ना हो रहा है, मैं एट वेरी पीस, तो भी मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाती हूँ. जब कोविड का टाइम था तो मैं खुद बोलती थी, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी फारिग रह रह के, कि मैं खुद कहती थी कि आई नीड एकेडमिक स्ट्रेस, तो आई वांट यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट अगेन फिजिकली, क्योंकि आई नीड एकेडमिक स्ट्रेस और आई नीड एकेडमिक प्रेशर. और मुझे लगता है कि थोड़ा सा देयर शुड बी अ लिटिल बिट स्ट्रेस, या व्हेन यू आर स्लीपिंग एट नाइट तो यू शुड हैव अ लिटिल अ माइनर स्ट्रेस, कि ओ मुझे सुबह जल्दी उठना, आई नीड टू डू दिस, क्योंकि दैट मेक कीप्स यू बिजी, और दैट, और मतलब कि उस वजह से कोई नेगेटिव माइंड होता ही नहीं, क्योंकि यू आर सो बिजी विद योर स्टफ. लेकिन जब आप बहुत फारिग होते हो तो आप एक दिन, और इसलिए वजह से एक दो दिन ही छुट्टी होती है. अगर आपको पूरा हफ्ता भी ऑफ हो जाए ना, और आपको खुद टाइम स्पेंड करना पड़े, और आप बिल्कुल ही वेले हो, तो बहुत नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि यू आर लाइक नाउ व्हाट शुड आई डू. लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग और यू आर स्टडिंग, तो उस चीज़ का बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और यू कांट डू एनीथिंग प्रॉपरली, और आपको ना नींद सही से आती है, ना आपका काम सही से होता है. सबसे बड़ा मेरा इसमें एडवाइस ये होगी कि थिंक अबाउट वन थिंग एट वन टाइम. एक चीज के बारे में सोचो और एक चीज को लेके चलो. जब तीन चीजें आपके जहन में होंगी ना, कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मैं क्या पहले करूँ क्या नहीं करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, or what is something that needs to get done right now, or what is the thing that is the most stressful for you, या जो सबसे ज्यादा प्रेशर डाल रही है. और सबसे पहले बाकी सबको भूल जाओ, और उसको देखो कि व्हाट इज द थिंग्स दैट नीड टू बी डन, ताकि मैं इस चीज को खत्म कर सकूं. सेकेंडली, जब आप वो काम एक्चुअली कर रहे होते हैं ना, बीट अ असाइनमेंट, बीट अ ऑफिस वर्क, बीट अ हाउस चोर, जब आप उस इट्स मोर stressful to lay down or to scroll your phone and think about it, और इट्स लेस स्ट्रेसफुल जब आप एक्चुअली वो काम कर रहे होते हैं. तब आपको इतना नहीं होता, इवन तो आगे आपको पता है कि अच्छा अभी बहुत पड़े, लेकिन जब आप उस प्रोसेस में चले जाते हो ना, तब वो आपके लिए इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता. लेकिन जब आप अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हो, या आप बैठे हो, या यू आर लेइंग डाउन, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस होता है कि ओ आई हैव द डेडलाइन, और मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं है. जब आप एकदम से काम करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपका स्ट्रेस खत्म होता जाएगा, क्योंकि यू आर ऑन इट, यू विल गेट इट डन. तो इंस्टेंटली जो है, मैं पता है क्या करती हूँ, आई मतलब कि देयर इज दिस थिंग, इट्स कॉल्ड द 5 second रूल, आई डोंट नो, द 3 second रूल, कि you're even if you're scrolling your phone or if you're laying down, तो आप कहते हो 1 2 3 and you switch your phone off or you get up, कि बस I have to do this work. तो दिस इज समथिंग दैट रियली हेल्प्स मी. मुझे जब स्ट्रेस होता है तो मैं इतना, मतलब कि पहले तो मुझे जब स्ट्रेस अगर हो, और आई थिंक अ माइनर स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट. जैसे मुझे स्ट्रेस था, मुझे कल की पॉडकास्ट अपलोड करनी है, अगर मुझे वो ना होता तो मैं कभी भी अपलोड ना कर पाती, और मेरा फिर वो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए चीज़ों का, और इस वजह से आप चीज़ें सही से कर लेते हो. अगर आपको प्रेशर नहीं ना होगा, तो यू कीप डिलेइंग द टास्क, और वो कभी भी नहीं हो पाएंगे. तो थोड़ा सा प्रेशर ज़रूरी है. हम यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अच्छे से इसलिए पढ़ लेते हैं, हमें वो चीज़ें कोर्स की बुक्स, या फिर हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने पढ़ के देखा हुआ है, इट्स क्योंकि हम पे कोई डंडा नहीं होता, हम पे इतना वो प्रेशर नहीं होता, तो हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं. और क्लास में क्योंकि देयर इज समवन हु इज फिजिकली इन फ्रंट ऑफ अस हु इज टीचिंग अस, और हमें ज़्यादा बेइज्जती का डर होता है, तो हम ज़्यादा सीरियसली वो काम लेते हैं. तो आई थिंक अ लिटिल बिट स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट, एंड इट्स नॉट दैट बैड. लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाए और आप ओवरवेलम हो जाओ, तो आप सबसे पहले एक चीज़ के बारे में सोचो, थिंक वन, ये मतलब कि दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग कि मैंने एवी फलसफे झाड़ दी हूँ. आई हैव ट्राइड इट एंड इट वर्क्स. थिंक अबाउट वन थिंग एट वन टाइम, और फिर जो सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेस करेगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और फिर बहुत ज़रूरी है कि आप बैठ के ना आइडेंटिफाई करो कि ओ
what are the things that I have to do to get this task done, ये चीज़ें मुझे करनी है, ये नहीं करनी, राइट इट डाउन। मतलब कि बहुत अच्छा होता है अगर आप राइट इट डाउन, या मतलब कि मोबाइल पे आप नोट्स में लिख लो, और मतलब कि फिर गेट इट, मतलब कि फिर वर्क ऑन इट एंड इट वुड बी। और जब आप एक मतलब कि उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर इट गेट्स लेस स्ट्रेसफुल फॉर यू, क्योंकि यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर इट। तो ये चीज है, एंड इवेंचुअली यू विल वर्क फॉर इट। सो दैट्स समथिंग, आई होप दैट वाज हेल्पफुल। और अच्छा, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के जोहा आस मतलब कि आस्क्ड मी कि आई शुड डू अ पीएसएल का। अच्छा, तो द थिंग इज दैट के आई वाज रियली बिग ऑन पीएसएल, और इट वाज माय थिंग, इट वाज माय शिट। और मैं उसके बारे में बहुत ट्वीट करती थी, आई वाज क्रेजी अबाउट, आई स्टिल एम। लेकिन दिस सीजन आई डोंट नो व्हाई बट आई कुडंट कीप अप विद इट, क्योंकि एक तो इट मुझे उस टाइम जब वो मैचेस होते हैं तो बेसिकली दे आर माई वर्किंग आवर्स, दे आर नॉट रियली, लेकिन आई वर्क दैट टाइम। और फिर उसके बाद जो है आई डोंट नो, मैंने ये ना अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बोला था कि लाहौर कलंदर वॉन लास्ट लास्ट ईयर। मतलब कि देयर वाज दिस थिंग कि ओ लाहौर कलंदर अभी तक जीता नहीं है, एंड देयर वाज होल दिस थिंग, मतलब कि इफ यू गाइस नो कि, तो उस वजह से ना काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि लाहौर कलंदर जीता नहीं था। तो एवरीवेयर वी वुड बी लाइक लाहौर कलंदर जीतेगा, लाहौर कलंदर जीतेगा। और फिर वो नहीं जीतता था, वो कभी सेमीफाइनल में हार जाता था, कभी कभी तो वो हर मैच ही हार जाता था। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन लाहौर कलंदर जीत गया, तो इस वजह से हाँ आई वाज लाइक कि हाँ जीत गया ना, तो अब मतलब कि क्या। और इस वजह से आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई मे बी आई डिडंट हैव द अटेंशन स्पैम, मे बी आई वाजंट दैट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। और इस वजह मतलब कि इस बार मैं इतनी हाइप भी नहीं देख रही, मतलब कि देयर आरंट अ लॉट ऑफ मीम्स, और वो सब कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से आई एम रियली नॉट कीपिंग अप विद द पीएसएल। लेकिन जब मैं अगर मैंने देखा आगे जाके, या मैंने फाइनल्स के मैचेस देखे, तो आई वुड रियली लव टू डू अ पॉडकास्ट ऑन इट। लेकिन वरना फिर आई विल डू इट ऑन वर्ल्ड कप, क्योंकि आई मतलब कि आई एम मोर, मतलब कि आई एम स्टिल enthusiastic about वर्ल्ड कप। तो दैट्स इट। Then I got this question from a very special person, और a huge shout out to अल्फिया। अल्फिया ने मेरी पिछली एपिसोड भी सुनी, और मुझे उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, और इतनी ज़्यादा ट्वीट्स की, और इट शी टैग्ड मी एंड इट मेड मी सो मच हैप्पी। तो अल्फिया, आई लव यू सो मच, और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट एंड being my favorite supporter ever, being my favorite listener ever. अल्फिया क्वेश्चन मी, और इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन। तो ये तो इस पे तो एक अलग से पॉडकास्ट बन सकती है, तो अभी मैं सिर्फ इसका 2 मिनट का जवाब दूंगी, लेकिन आई वुड लव टू मेक अ होल एपिसोड डेडिकेटेड टू इट, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ ओपिनियंस, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपको हर साइड की सोचनी है, और फिर आपको एंड पे कंक्लूजन पे आना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं 2 मिनट में जिसका आंसर दे सकती हूँ। लेकिन आई वुड गिव अ लिटिल टीजर, और फिर मैं उसका पूरा एपिसोड बनाऊंगी, एंड इट वुड बी अ ग्रेट एपिसोड, क्योंकि आई पर्सनली वांट टू टॉक अबाउट इट टू। और दिस इज द टॉपिक दैट आई हैवंट टच्ड येट, क्योंकि मुझे था कि पहले मैं थोड़े अच्छे बच्चों वाले टॉपिक्स बना लूँ, और फिर दिस इज जरा अ बिट मोर डीपर एंड मोर एडल्ट टॉपिक, तो ये मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। लेकिन अल्फिया आस्क्ड के इट्स नॉट रियली एडल्ट, मेरे लिए एडल्ट होगा, लेकिन इट्स मतलब कि अ बिट spice not spicy, it's a bit juicy, लेकिन it's a bit मतलब it's adult. अच्छा, Alfia asked के what to do when you get attached to someone or fall for them and they can't be yours. um for me, what really did for me is that ke, I think there is a lot of different situations that could fall under this question, लेकिन इट कुड बी, आप मुझे नहीं पता कि जो जिस इंसान की बात हो रही है, इफ दे आर मतलब कि दे डोंट रियली टॉक टू यू एंड यू आर द वन हु आर इन लव विद देम, और उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है, और उनको कभी पता भी नहीं चलेगा, या फिर उनको पता है लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे उसे, और आपकी नहीं हो मतलब कि वो हमेशा के लिए आपके नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसकी बहुत सिचुएशंस हो सकती हैं। फॉर द फर्स्ट सिचुएशन, I think personally what works for me is that के I don't get attracted to someone who is not attracted to me। मैं personally, और मुझे पता है कि अगर ये इंसान मुझसे नहीं मतलब कि मुझे उस तरह नहीं अटेंशन दे रहा, मतलब कि I would get a little bit मतलब कि I do find people attractive, guys attractive, और I do think that
oh they're cute, लेकिन if they are not giving me that attention और मुझे लग रहा है कि उनके लिए मैं नॉन एग्जिस्टेंट हूँ और उनको they don't care, तो मुझे भी मतलब कि I don't care about them too personally, और तो I don't get very emotionally attracted, not emotionally but even physically attracted, और मतलब कि seriously attracted to someone unless and until they are not. अगर मुझे लग रहा है कि कोई मतलब कि किसी के लिए मुझे कोई अच्छा भी लग रहा है एक नज़र में, लेकिन मुझे पता है कि they don't give a fuck about me, so I won't go and approach to them myself. I would always let people come to me. ठीक है, this is something that really works for me. सेकेंडली अगर वो इंसान आपका आपके साथ है लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, लेकिन आप या आपको लगता है कि हमारा एंड तक मतलब कि हमारा रिलेशनशिप लास्ट करना हमेशा के लिए बड़ा मुश्किल है, येट दिस रिलेशनशिप वुड नॉट एंड अप इन अ मैरिज, तो आई थिंक कि दिस इज मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत इस पर बहुत लंबी डिस्कशन है और मैं बहुत एंड तक जा सकती हूँ, लेकिन बात ये है कि अगर दो तरह के इंसान होते हैं, मतलब कि कभी कभी होता है कि वो इंसान आपके लिए सही होता ही नहीं है, या फिर वो इंसान एक अच्छा इंसान होता ही नहीं है, और शुरू में ये बहुत मुश्किल होता है किसी के रेड फ्लैग्स एक्सेप्ट करना, या एक ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि कोई इंसान अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि अगर आपको पसंद है वो इंसान तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप वो चीज़ एक्सेप्ट कर सको कि यार ये इंसान गलत है या मेरे लिए नहीं सही, और आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं या आपको कोई 10,000 बार बोल रहा है कि यार नहीं ये नहीं सही, ये नहीं सही, आप नहीं, यू कांट एक्सेप्ट दैट कि यार ये अगला इंसान ऐसा है और मैं कभी भी इस इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती, मैं इसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, आई कांट फॉल इन लव विद समवन एल्स, और बस यही इंसान है, और अगर ये नहीं है तो कोई भी नहीं है। आई थिंक कि टाइम बीइंग के लिए ये होता है, बट पीपल डू मूव ऑन. I have a slight experience for something like that, which I would love to share. I am a bit scared क्योंकि as I said कि मेरे हिंदी लोग मुझे सुनते हैं, लेकिन I think that everyone experiences that, and I have friends जो who also went through things like these, तो मुझे उन मतलब कि और मतलब कि we discussed it so many times, तो मुझे उनका भी एक्सपीरियंस है, तो मतलब कि दैट्स अ ह्यूज मतलब क्या बिग डिस्कशन, लेकिन अगर आपको लग रहा है कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि इट वॉन्ट बी समथिंग दैट वुड हैपन इंस्टेंटली कि आप एक दिन उठो और आपको आई एम सो ओवर बाय देम, इट टेक्स टाइम बट ट्रस्ट मी यू गेट ओवर बाय देम, यू मूव ऑन, और आपको बाद में पता चलता है, आपको बाद में रियलाइज हो रहा होता है कि जब और अगर आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान एंटर हो जाए ना, इट्स मतलब कि आई हैव सीन पीपल बीइंग डीपली इन लव विद समवन एल्स, और उनका वो रिलेशनशिप और वो सब कुछ उसमें परफेक्ट होता है, लेकिन वो नहीं काम कर पाता और वो खत्म हो जाता है, तो मैंने लोगों को देखा है कि वो उससे मूव ऑन करें और फिर दे फॉल इन लव विद समवन एल्स टू, और फिर जो नया इंसान उनकी जिंदगी में आता है वो कहते हैं कि यार नहीं ये ज्यादा अच्छा इंसान है, और वो पिछले में ये चीजें थी जो वो इंसान मुझे प्रोवाइड नहीं कर सका जो मुझे कर रहा है, तो जब आप प्रेजेंट में किसी और के साथ होते हो ना, तो आप पिछले वाले को नहीं सोचते, अगर आप कंप्लीटली मूव ऑन कर जाओ और आप अपने आप को टाइम दो उस चीज से हील करने का, और आप अपने आप को समझाओ कि मतलब कि मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो हैं ऑब्वियसली अपने आप को समझाना भी कोई आसान चीज नहीं है, लेकिन आई हैव सीन पीपल गेटिंग आउट ऑफ इट, एंड आई हैव सीन पीपल एक्सेप्टिंग इट, ऑब्वियसली आप किसी को पूरी जिंदगी के लिए भूल नहीं सकते, या यू कांट अरेज समवन्स एग्जिस्टेंस और समवन्स चैप्टर इन योर लाइफ, बट a lot of it comes with the fact कि you have to accept that this person came in my life. मैं इस चीज़ को बैठ के रिग्रेट नहीं कर सकती, मैं इस चीज़ को बैठ के मैं टाइम मशीन में पीछे जाके उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकती, वो अब और वो इंसान शायद मेरी ज़िंदगी में वापस आ भी नहीं सकता, वो एक, लेकिन आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है और इस चीज़ में पीस में रहना पड़ता है कि वो इंसान का वो मेरी ज़िंदगी में आया है, और ये चीज़ें उसकी मतलब कि उसने मुझे दी हैं और ये चीज़ें मैंने उसको दी हैं, और अब वो चला गया, ही टुक अ पार्ट ऑफ मी एंड अ पार्ट ऑफ हिम इज लेफ्ट इन मी एंड आई हैव टू लिव माई होल लाइफ विद दैट, आई डोंट रियली नीड टू हेट दैट के मतलब कि आई थिंक दैट इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल कि मैंने मतलब कि आई लेट माई सेल्फ फॉल फॉर समवन, एंड आई डोंट रिग्रेट इट, इट वॉज मतलब कि नॉट एवरी वन
कैन स्टे विद यू फॉर एवर, कुछ लोग आपकी जिंदगी में थोड़े मोमेंट के लिए आएंगे, लेकिन ही गेव, मतलब कि इन मी, आई वुड, मतलब कि ही गेव समथिंग ऑफ हिमसेल्फ, मतलब ही लेफ्ट something in me which will never go away, or he took a part of me which I will never get back. लेकिन it's okay, it's beautiful. um I won't grieve for it forever, लेकिन आई वॉन्ट रिग्रेट इट कि ऐसा क्यों हुआ, मैं, और मैं उस चीज़ से नफरत नहीं करूँगी। आई वुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ मुझे कोई इंसान पसंद आया और मैंने उसको ये चीज़ अब दी, आई गेव हिम अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ, लेकिन इट्स ओके, आई वुड मूव ऑन फ्रॉम इट, बट आई ऑल्सो एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्टेड एंड ओन इट। और मुझे मतलब कि देर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट, मैं कुछ उस चीज़ के बारे में चेंज नहीं करना चाहूँगी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर वो इंसान हरामी नहीं था तो आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, एंड इट्स ओके, आई हैव टू लेट इट गो एंड आई हैव टू फॉल इन लव विद समवन एल्स, एंड दिस इज, मतलब आई डोंट वांट टू erase दिस मेमोरी, इट्स ओके, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। व्हाट आई एम नाउ इज बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस, वरना मुझे अगर वो एक्सपीरियंस ना होता तो अभी शायद मैं ये इंसान ना होती। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट कम्स विद द एक्सेप्टेंस कि हाँ ठीक है, वो सब कुछ मेरे साथ हुआ और अब मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकती, और मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है, और मुझे उस, मतलब कि वो, मैं ये नहीं कह सकती काश ये चीज़ मेरे साथ ना होती, इट वॉज बाउंड टू हैपन, इट हैपेंड। और मैं मतलब कि मैं जितना पॉजिटिव उस चीज़ को लेके चल सकती हूँ मैं चलूंगी, एंड इट्स नॉट लाइक कि आई कांट फॉल इन लव विद समवन एल्स टू, यू विल। लेकिन अल्फिया, आई मेक अ होल डिफरेंट, whole podcast dedicated to it, or it would be a really interesting episode and I would love to share my experience। मतलब कि it's not that major क्योंकि बहुत, it's a very slight like 5%, लेकिन I learned a lot from that। और I मतलब as I said कि मैंने अपनी दोस्तों का भी मुझे मतलब कि बहुत करीबी एक्सपीरियंस है, तो I would love to have a discussion on it, I would love to। लेकिन that said, Kurat messaged me, or Kurat said that she just want to let me know that I am doing great and she loves my voice। जब भी मुझे कहते हैं ना I love your voice, तो I don't, मतलब कि I am so insecure of my voice, लेकिन she told me that they really inspire her। Kurat, you inspire me so much, or I love you so much, or that's really it with the questions, not a lot, मतलब कि it's okay। लेकिन thank you, if someone really made it till the last, thank you for listening to this podcast, it was all over the place। I don't think that इतनी कोई अच्छी थी, मुझे लास्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा बाय द वे, जिसमें मैंने अल्फिया, ग्रेट क्वेश्चन, एंड आई वुड लव टू मेक अ होल पॉडकास्ट ऑन इट, लेकिन दिस वाज काइंड ऑफ अ फिलर एपिसोड। लेकिन थैंक यू सो मच, मतलब कि इट्स द 10th एपिसोड स्पेशल, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर listening to the podcast, or thank you so much for for making it for making it what, पता नहीं, मतलब कि फॉर मेकिंग, थैंक यू सो मच। आई डू, मतलब कि मतलब मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया कि ओ मुझे किसी एपिसोड पे लिसनर्स बहुत, मतलब कि ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, किसी पे नहीं आता। और जब भी मुझे ऐसा लगे ना कि ओ मुझे आ नहीं रहा, मुझे आ नहीं रहा, आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम डूइंग टू गेट फेमस, आई एम डूइंग दिस क्योंकि आई वॉन्टेड टू डू दिस, एंड दिस इज़ सो, दिस इज़ समथिंग आई ड्रीम्ड ऑफ, एंड आई एम नॉट, आई टोल्ड माई सेल्फ कि मैंने इस चीज़ पे स्ट्रेस नहीं लेना। और फेमस होना मेरा गोल भी नहीं है कि मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, मुझे पैसे मिले, मुझे पीआर पैकेजेस मिले, मुझे लोग अपने मतलब के शोज पे बुलाएं और मेरे इंटरव्यू लें और मैं ब्लॉगर बन जाऊँ, ये मेरा नहीं था। इवन इफ 5 people आर लिसनिंग टू इट एंड it's giving them some positivity or some sort of energy, तो वो मेरे लिए काफ़ी है। तो I keep reminding myself that this is not something that I wanted to do because I wanted to be famous. This is something that I really love to do. I'm so grateful that I am getting to do this. Or it's so cool to wake up every day and think that, oh, I dreamed of this 2 years ago or 3 years ago and now I have this. It's so great. It's such a good feeling. Or मतलब कि it's so cool. Or I can't believe it's very surreal for me that I really wanted to do this and I have this. Or to see my name on Google Podcast or Spotify or Apple Podcast, which it's so amazing. So thank you for sticking with this podcast. Thank you for listening to it. I don't know, मतलब कि I'm really grateful. मुझे लगता है कि I don't know
मतलब क्या if I deserved it or not, लेकिन thank you so much. आई एम रियली स्केर्ड कि कभी मैं कुछ ऐसा ना कह दूँ कि किसी को ऑफेंड कर जाए, इसलिए आई मतलब मैं बार बार अपोलोजाइज करती हूँ कि आई एम सो सॉरी। लेकिन इफ आई सेड एनीथिंग जो कि which you could not relate to or you disagree with, तो आई एम सो सॉरी विद दैट। आई थिंक कि पर्सनली वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट प्लेस, और आई डोंट थिंक कि हर कोई इंसान एक्सट्रीमली गलत होता है और कोई इंसान एक्सट्रीमली सही होता है। जब कोई ओपिनियन हो किसी चीज़ में और स्पेशली लाइफ एक्सपीरियंसेस पे, एवरीवन इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस और हर किसी ने डिफरेंट जिंदगी देखी है, तो उनका पर्सपेक्टिव उस चीज़ के बारे में डिफरेंट है। तो ये सीन है। लेकिन इट्स अ शॉर्ट एपिसोड, लेकिन पिछले एपिसोड बहुत लंबी थी। इट वॉज ऑलमोस्ट 2 आवर्स। तो आई होप दैट मतलब कि दैट रियली डजंट कंपनसेट, लेकिन आई मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड वुड बी रियली रियली मतलब कि वुड बी विद द सेम फॉर्मेट जो मेरा लास्ट टाइम था। और इट वुड बी अ ग्रेट एपिसोड। और थैंक यू सो मच, और आई लव यू गाइज, और see you guys very soon in the 11th episode of the From Your Heads. Bye.